ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਇਆ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? काफ़ी काम किया फिल्म बॉलीवुड च लगभग 300 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ फिल्मां ਕੀਤਾ। च मैंने बंसरी बजाई है। ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ग्लैमर की दुनिया भी मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकी पर मेरा मन जो बसदा है वो शास्त्रीय संगीत ते बसदा है। ਰੀਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ आज का जो माहौल है वो रिमिक्स का भी आप देख रहे होगे कि वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग ओरिजिनल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जी, तो जिसका जैसा कैटेगरी होगा वो वैसा ही पसंद होगा। तो ऑडियंस भी अपनी वैसी है, क्लासिकल की है। रवीन जैन जी के साथ मैं काम ज़्यादा शुरू किया ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ। रिलीजन तो एक ही है, एक ओंकार जब बोलते हैं तो सारे एक हैं, सारे एक हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। साथ पाके मुझे कभी भी आज भी मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं मैरिड हूँ। जी, वैसे ही फ्री लाइफ जैसे मैं अनमैरिड था किसी तरह का रोक टोक नहीं कि ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੀਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर एवरीथिंग। बिल्कुल। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਤਬਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। सही गल है जी। बहुत एक तो सबसे बड़ा मालक का शुक्र है कि उसने संगीत दिता और संगीत दी सेवा करने दी मैनू चुना है, तो मैं बहुत खुश हाँ संगीत पाके जी। ਜੀ ਸਰ, ਬਾਂਸੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? मैं लगभग 8 साल 9 साल का हैगा तो मैंने शुरू की थी। 11 साल तो मैं परफॉर्मेंस शुरू की थी क्योंकि घरों संगीत सीगा
तो कितने भी जाने दी लोड़ नहीं पई। तो ये बहुत वड्डा मेरे ਲਈ एक बड़ा पॉजिटिव ये रहा कि ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? मेरे दादाजी तो शुरू होया ये, क्योंकि मेरे दादा ਨੂੰ संगीत बहुत पसंद ਸੀਗਾ। तो वो जमींदारां ਦੇ फैमिली ਸੀਗੇ अपनी। तो पर उन्होंने संगीत एक उस्ताद फरजंद अली खान सीगे कोलकाता तो जी। तो मेरा पैटर्नल जो ग्रैंड पैटर्नल जो जगह है वो गया है जी। बोध गया नाम सुना होगा तो पटना दे विच। हाँ, पटना तो दूर हैगी जी। तो उत्थे सीगे, पर बाद जो मेरे फादर मेरे अंकल पटना शिफ्ट हो गए क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो ते वैकेंसी सीगी। बहुत पुरानी गल है जी, 1948 से पटना रेडियो खुला। तो मेरे चाचा मेरे फादर साहब उत्थे ज्वाइन कर लिया, तो फिर पटना हम लोग रहने लगे। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी, मैं जब पढ़ाई कर रहा सीगा तो मैं तो ये कहूँगा कि गुरु ते धरती तो इत्थे आ गया। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा धरती है पटना साहिब, 10वें पातशाह, और उन्हां दे मने पिओ दा पटियाला गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर जी दी धरती है। पर मैं तो पटना तो निकला था मुंबई जी, तो बॉलीवुड से एसोसिएटेड हो गया। तो मैं काफ़ी काम किया फिल्म बॉलीवुड चो, लगभग 300 फिल्मां दे विच काम फिल्मां कीता। मैंने बंसरी बजाई है और बहुत म्यूजिक अरेंजमेंट का भी काम किया है। तो उत्थे तो ग्लैमर की दुनिया थी, पर मेरा मन हमेशा सूफियाना रहा और आध्यात्मिक सोच रही, क्योंकि घर का माहौल भी बहुत स्पिरिचुअल रहा। मेरे फादर साहब अंकल सारे बड़े वड्डे कलाकार सीगे। तो उन्हां दे संस्कार और जो गुरु शिष्य परंपरा सीगी वो मेरे रोम रोम च बसदा हैगा। तो मेरे फादर साहब जो जितने शिष्य रहे घरों आंदे सीगे, तो मैंने किसी तो भी 1 रुपया कदों भी लीता नहीं अपने स्टूडेंट चो। ओके, मैं भी वही ट्रेडिशन चला रहा जी। तो हुण तक मैं 1 रुपया भी किसी स्टूडेंट तो लिता नहीं। मतलब कि जदों आंदे हैं तो जो भी मैं दाल रोटी खांदा सारे साथ रल मिल के सेम चलदा। एक गुरुकुल का जो माहौल हुंदा है आश्रम वर्गा, तो मेरा जिथे भी घर है यही आश्रम हैगा जी। जी। तो वो ट्रेडिशन को मैं लेके चल रहा हूँ जी। और खुशी है मुझे इस बात की कि कन्याकुमारी तो ये कश्मीर तो कन्याकुमारी भारत माना जाता है। तो कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक मेरे स्टूडेंट्स हैं ने। तो अभी भी कश्मीर तो एक स्टूडेंट आया हुआ है साहिल फारूक, वो 15 दिन से मेरे पास ही है, वो सीख रहा है, सुबह शाम लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा का जो भारतीय संस्कृति का जो एक बहुत बड़ा पहचान है, रोल है, वो स्टिल चल रहा है। वो गुरुआं ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैं ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ ਮੁੰਬਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
हाँ जी, मैं ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ तो बुलाते ਨੇ जी। और गल ये है कि मैंने पहला ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मेरी जो सोच जो विचार है वो स्पिरिचुअल है, तो वो ग्लैमर की दुनिया भी मेरे ऊपर चढ़ नहीं सकी क्योंकि संगीत इतना देवत तो मैं सीखिया। ਹੁਣ मैं ये कह सकते हैं, मैंने ना स्लोगन बनाया हैगा जी कि इल्मी तो फिल्मी तक। मैंने तुसी शास्त्रीय संगीत सुनना चाहो, सुगम संगीत, लोक संगीत, अंत तो फिल्मी संगीत तो बाहर कुछ है भी नहीं। तो इतना बड़ा दायरा मैंने तय किया है, तो कोई भी लोग मैंने किसी दी कुछ भी शौक होगी या पसंद होगी तो मेरे फ्रेम चे आ जाएगा वो बात नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरा दायरा बहुत बड़ा किया मैंने काम करने में किसी को भी छोटा समझा, बड़ा नहीं समझा। हर संगीत संगीत है जी। पर मेरा मन जो बसदा है वो शास्त्रीय संगीत ते बसदा है। तो मैं इंडिविजुअल भी मेरे कॉन्सर्ट होंदे रहंदे हैं, हाँ, पूरे भारत जो मैं विदेश में भी बहुत काम किया है मैंने। तो मेरे यहाँ आने का कारण जो है पटियाला, मेरे बहुत ही सगे मित्र थे, वो जनरेशन वाइज हमारी फ्रेंडशिप थी। उनके फादर, मेरे फादर दोस्त डॉक्टर मधुकर आनंद जी, वो यहाँ पे डांस डिपार्टमेंट में HOD ज्वाइन किए थे। तो फिर वो मुंबई गए हमारे पास ऐसे ही घूमने फैमिली के साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुसी तो बहुत पैसे भी कमा ली। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੀਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? असल जो देखो ये परिवर्तन तो प्रकृति है जी। तो एक जड़ा तो हमेशा रहेगा नहीं। तो लोग कोशिश करते हैं कई मिक्सिंग ये वर्क, पर आज का जो माहौल है वो रिमिक्स का भी आप देख रहे होगे कि वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग ओरिजिनल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी, क्योंकि जो पुराने लोगों को अब जो इंडियन आइडल्स है या बहुत तरह के चैनल्स में भी जो रियलिटी शोज़ वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे को देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा और इतना क्लासिकल बेस्ड इतना सारा कुछ कैसे हो रहा है जी। तो परिवर्तन तो नियम है कभी, लेकिन हर चीज़ का एक थोड़ा वक्त होता है, लेकिन टिकता वही है जो कि प्योर होता है, जो शुद्ध होता है। तो वो था एक समय, थोड़ा सा परिवर्तन के लिए वो चला, लेकिन आज लोगों को जब पता चल जाता है कि नहीं सच में क्या है, जो जैसे एक्चुअली हर चीज़ की कैटेगरी है जी, तो जिसका जैसा कैटेगरी होगा वो वैसा ही पसंद होगा। तो ऑडियंस भी अपनी वैसी है, क्लासिकल की है, गज़ल सुनने वाली है, फोक सुनने वाली है, फिल्म सुनने वाली है। लेकिन जब सब संगीत जो सुनते हैं तो वो कोई भी संगीत सुन सकते हैं। तो अभी माहौल ठीक हो गया है पहले से। वो रिमिक्स का जो है उसने तो नाश ही किया है, मैं तो मुझे तो पसंद नहीं है हाँ, क्योंकि जो लोगों ने एक अच्छा कुछ बना दिया है उसके ऊपर आप अपना काम करो, दूसरे की चीज़ों को बिगाड़ने पे क्यों लगे हो? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 뮤직 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? असल मेरी पैदाइश तो पटना हुई है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो गया के थे, तो पटना से मैं स्टूडेंट लाइफ में ही मैं शिफ्ट हो गया मुंबई।
तो वहाँ पे पहले से कई दोस्त थे। तो एक मेरे दोस्त अजय मिश्रा बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं जी। तो हम लोग साथ थे। तो वहाँ धीरे धीरे करके काम शुरू किया। तो रवीन जैन जी के साथ मैं काम ज़्यादा शुरू किया। तो उनके साथ शो भी किया मैंने, 5-6 साल शो भी किया उनके साथ जी। रवीन जैन। तो ऐसे ऐसे सभी लोगों के साथ मिलते गए एक जगह। वहाँ होता क्या है कि एक बार जब आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, तो फिर वो लोग आपको तलाशते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ए आर रहमान साहब के भी साथ काम किया है। वाह। और आनंद मिलिंद हो, चाहे आदेश श्रीवास्तव हो, रवीन जैन साहब के साथ तो बहुत काम किया है। बहुत सारे लोगों के साथ, सभी सिंगरों के साथ काम किया और कुछ म्यूज़िक अरेंजमेंट का भी काम किया। दूसरी बात यह है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी जो एक लाइफ होती है, आप कहते हैं कल्चर का जो फ़र्क, संगीतकार ही एक कलाकार ही एक ऐसा होता है कि वो कहीं से कहीं निकल जाए जी। तो उसको ये महसूस नहीं होता है कि मैं अपना घर छोड़ के आ गया। तो ये जैसे हुण तो मैं ये कह सकता कि हुण मैं पटियालवी हो गया। और सच्ची गल ये है कि जो पुरानी यादें हैं वो तो आनी ही है, पर मैं यहाँ रच बस गया हूँ और खुलेआम सभी लोग को कहता हूँ कि हुण तो मैं पटियालवी हो गया। और मैंने तो गुरुमुखी पास की है। वाह जी मैं वाह। लोगों ने कहता कि मैं तो पढ़ा लिखा पंजाबी हाँ जी। तो बोर्ड पास की है। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नेचर ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ वो ਰਿਹਾ? तो इतने कूल माइंड इंसान है और जैसे कि जितना बड़ा नाम है, जितनी लेजेंडरी है उनकी, पर आप जब जाओगे उनके पास तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। ਵਾਓ। इतने डाउन टू अर्थ, इतने कूल माइंड, इतना मतलब रिलैक्स हो जाओगे तुसी। मतलब ये जितना वड्डा नाम हैगा तुसी मिल के लगेगा नहीं कि मतलब इतने वड्डे लीजेंडरी नाल कम कर रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ? नहीं, वो तो मैनू बहुत लोगों दे प्यार मिल रहा जी। ते लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि एक मुस्लिम बंदा इतनी वधिया बंसरी बजा रहा। तो यही अपनी कल्चर की खूबसूरती हैगी कि भारत विच मतलब कितने तरह के लोग रहिंदे ने, कितनी भाषा बोली जाती, कितने खाण पीण का कितना फ़र्क हैगा, पर फिर भी सारे लोग रल मिल के एक साथ रहते हैं। अनेकता विच एकता। अनेकता विच एकता। अब बल्कि मैं तो ये खुलेआम कहता हूँ कि देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके जब काम करते हो तो बांसुरी कृष्ण की प्रतीक है। तो मैं तो आइडियल मानता कि कृष्ण, बिल्कुल। तो मैं तो कृष्ण की भक्ति है मेरे ऊपर। तो ये क्योंकि आप किसी के भी आइडियल हो सकते हैं, इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए। रिलीजन तो एक ही है, एक ओंकार जब बोलते हैं तो सारे एक हैं, सारे एक हैं। और तो खासकर कलाकारों के बीच में मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं मुस्लिमों के बांसुरी बजा रहा हूँ, बल्कि लोग हमें और अप्रिशिएट करते हैं और बहुत मान सम्मान भी मिला है मुझे बहुत जगह। कितने न जाने संतों से मैंने आशीर्वाद लिए हैं। और क्या कहते हैं, ये भी देखिए स्फटिक के माला, मैं तो रुद्राक्ष भी पहनता हूँ। हाँ, तो ये कला मतलब जब तक हम एक को मानेंगे ना तो सब हैं। जैसे गुरु नानक देव जी का भी जो कहा गया है, जो क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कौन नहीं है, कौन नहीं है ना, कबीर नहीं है जी। कि संतों की बात नहीं है कि कितने वो क्या कहते हैं भक्त लोग हैं, तो सारे लोग हैं। तो ये तो इसलिए मुझे यहाँ आके और भी अच्छा लगा पंजाब में कि कम से कम सब लोग की जो सोच है वो एक है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब पे मैंने जो 31 राग प्रकार है उस पर मैंने बहुत काम किया है।
और गुरमत संगीत के ऊपर मेरा बहुत बड़ा काम है और रिसर्च भी है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੂਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਧਕ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਮਿल्ला खान तो भी शायद ज्यादा ਵੱਡੇ ਸਨ ਨਾ? वो सीनियर थे क्योंकि वो उस्ताद रहीम बख्श खां थे जी, बहुत अच्छे शहनाई वादक थे उस समय में। फिर मेरे पिताजी उस्ताद पीर बख्श जी, जो बांसुरी और शहनाई दोनों बजाते थे। मेरे छोटे चाचा थे फ़हीमुल्लाह खान, उस्ताद फ़हीमुल्लाह खान साहब, तो उनकी तो कमाल ही की बात थी। उस्ताद फ़हीमुल्लाह खान साहब की ये बात थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही बांसुरी रखी, दूसरी बांसुरी ही नहीं रखी अंत तक। और चाहे कोई सा भी स्केल आ जाए, कोई सा भी हारमोनियम आ जाए, एक ही बांसुरी से पूरा सारा कुछ बजा देते थे। तो कई बार पंडित हरिप्रसाद जी ने भी कहा कि फ़हीमुल्लाह साहब की जो फूंक है तो वो मुझे मिल जाती तो क्या बात है। वाह जी वाह। तो बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो सारा असर जो है हमारे ऊपर मैं महसूस करता हूँ और उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਂਸੁਰੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो ये बांसुरी जो है वो बड़ा औखा साज है जी, क्योंकि इसमें सुर 12 होते हैं। वैसे कहने को 7 स्वर होते हैं लेकिन कोमल तीव्र सारे स्वर मिला के 12 स्वर होते हैं। तो इसमें छेद सिर्फ 6 है, एक फूकने के लिए 7 छेद की बांसुरी होती है। तो इसको मुरली भी कहते हैं और आड़ी बांसुरी भी कहते हैं। जो एक सीधी बांसुरी होती है पंजाब में उसे वंजली बोलते हैं जी, है ना। तो जो सीधी बांसुरी है वंजली होती है। तो मेरे फादर जो है, अभी एक मेरा रिसर्च पेपर था तो उस पर मैंने लिखा था कि वंजली पे भी जो है क्लासिकल बजाया जा सकता है, क्योंकि मेरे जो फादर साहब थे जी, वो बड़ी वंजली बजाते सीखे, तो राग बजाते सीखे। ओके, तो मैं सिखा भी रहा हूँ बच्चों को। यहाँ पे पंजाब में मैंने बड़ा काम किया म्यूज़िक के ऊपर। अलगोज़े में बहुत सारे शागिर्द हैं हमारे। ये यमला जट के जो पोते हैं विजय यमला जी, उसको मैंने बीन सिखाया, क्योंकि यहाँ पे लोक साज में ये सब काफ़ी बजता है फोक ऑर्केस्ट्रे में। मैं बजाता तो नहीं है क्या कहते हैं अलगोज़ा, पर उसमें मैंने बहुत कुछ इन्वेंट किया। पहले 2-2.5 सुर बजते थे, मैं 4-5 सुर विजय अमला को भी सिखाया। एक रवि कुनर है हमारे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैंने पंजाब में भी आके एक मतलब इन्वेंट किया है और उसको और भी बढ़ाया है। तो ये सब मैंने पंजाब में काफ़ी काम किए हैं लोक संगीत के ऊपर, और काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे जो यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं। मतलब आप समझ लो 6-7 साल के बच्चे से लेकर 75 साल की उम्र तक के स्टूडेंट हैं हमारे जो बांसुरी सीख रहे हैं। पूरे पंजाब में तो हैं ही, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ही है, लेकिन पंजाब में बहुत हैं। एक विकी वर्मा है पठानकोट से, वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਗੁਣਮय ਨਾਮ से है, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਇਹ ਉਹ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ? हाँ जी, मैक्सिमम फैमिली ऐसे जिन्हां दा पिछोकड़ कोई भी संगीत तो नहीं है, पर वो सीख रहे हैं। उन्होंने शौक हैगा तो देख के तो सुन के, तो हुण तो वो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनली मैंने परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत वधिया कर रहे हैं। बहुत सारा मान सम्मान भी मिल रहा है। मेरा एक शागिर्द है अनिल शंकर जो मुंबई विच हैगा, तो मैं अनिल को हरिप्रसाद जी के पास दे के आया, क्योंकि मैं मुंबई से चला आया जी। तो हमने कहा कि कोई गुरु एक रहना चाहिए।
तो उसका बेटा है, अभी रागा फ्यूज़न हुआ था, उसमें उसने सेकंड रनर हुआ है, बहुत बड़ा रागा फ्यूज़न का। तो उसमें वो मेरा शागिर्द है हर्षित शंकर, उसका बेटा। अभी वो राकेश जी के पास सीख रहा है। तो मेरा ये नहीं कहना है कि जो शागिर्द हमारे पास हैं तो मेरे पास ही रहें। उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनका ब्राइट फ्यूचर हो, इसके लिए और भी अच्छी जगह जाएं जहाँ से उनको और भी उनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो मैं उस जगह भेज देता हूँ। तो मैं तो ये भी अपील करना चाहता हूँ कि गुरुओं को कि उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझे स्टूडेंट को, क्योंकि उनका जहाँ भविष्य उज्जवल है उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿష్य ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿష్य ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿష్य ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? दोनों साइड से है। देखो, ये तो रिश्ते की बात है जी। ये तो चाहे गुरु शिष्य हो या कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, हस्बैंड वाइफ हो जी। ये तो अगर आपकी जिस दिन से आपके अंदर कोई स्वार्थ आ गया कोई, तो फिर वो रिश्ते वो पवित्र रिश्ते रहते नहीं। बिल्कुल। जहाँ सरेंडर है वहीं सब कुछ है। अब मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने खुद से ही उसको भेजा और आज वो अच्छा कर रहे हैं, वो लोग आते हैं हमारे पास रहते हैं, और आज भी उसी तरह का रिश्ता बना हुआ है। मुझे खुशी होती है कि वो आज फिल्मों में भी जा रहा है। अब मेरा पोता शिष्य हो गया ना जी। वो बेटे को सिखाया, उसका बेटा भी एस्टेब्लिश हो गया, वो सुभाष घई के साथ बजा रहा है। हाँ जी। आज बड़े सलीम सुलेमान के साथ बजा रहा है। तो मैंने जो बीज बोया था वो देखो आज पौधे बन के पेड़ बन के फल दे रहे ने। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? हमारा तो क्लास का ही है रूटीन, हमारा कोई ऑफिशियल वर्क तो है नहीं, तो हमारे क्लासेज ही होते हैं। तो सुबह 9 से 5 की ड्यूटी है। तो जैसे जैसे क्लास होता है, कभी फ्री होता है तो उसी बीच में स्टूडेंट जो पूछताछ कर रहे हैं, तो जो फ्री क्लासेज हैं उसमें भी आके पूछ लेते हैं। उसके बाद का 2 दिन तो पूरा ही हम 5 डेज हमारा वर्किंग है। तो सैटरडे संडे स्टूडेंट के लिए, या मेरे कई शोज़ भी होते हैं, या कहीं वर्कशॉप है, कहीं सेमिनार्स है, तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर सुबह रियाज, शाम रियाज, कोई ना कोई आ गया। फिर डिपेंड करता है कि आपका कैसा डेली रूटीन। तो 9 का 5 का है जी। उस बीच में कहीं आना जाना हुआ तो छुट्टी लेके चले गए ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਹਮਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। मैं जी यूरोप गया था एक बार। तो यूरोप में मिलान यूनिवर्सिटी में मेरा वर्कशॉप था, सेमिनार था। वहाँ पे बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मिला मिलान यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस गोल्डन जुबली साउथ अफ्रीका में मनाया जा रहा था, तो उसमें मैं गया था। तो वहाँ मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। तो अभी रिसेंटली मुझे क्या कहते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के तरफ से लोकनायक जेपी कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस तरह की लंबी फहरिस्त है, पर अच्छा लगता है, कुछ मिलता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला मुझे। नेशनल लेवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का एक ग्रेड कलाकार हूँ मैं, जूरी मेंबर भी हूँ वहाँ पे। ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾइम ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत ज़्यादा दूरदर्शन सारा कुछ ये तो होता ही रहता है। अभी मैं वहाँ पे जज भी हूँ, जूरी मेंबर भी हूँ ऑल इंडिया रेडियो में, बोर्ड में। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। बिल्कुल। तो बाकी चल रहा है ज़िंदगी, ये नहीं सोचता हूँ कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा।
जो संगीत करके खुशी मिल रही है उसका कोई मूल्य नहीं। ਜੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ? देखो जी, बिना जीवन साथी के आप खुश नहीं रह सकते अगर उसका आपको सपोर्ट हो। तो मैं ये बहुत लकी हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो भी म्यूज़िक से है, वो ओडिसी डांसर रही हैं। वाओ। और उन्हें भी APJ कलाम साहब से अवार्डेड हो चुकी हैं जी, और बहुत अच्छी कोरियोग्राफर रही। तो उनके साथ उनका साथ पाके मुझे कभी भी, आज भी मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं मैरिड हूँ। जी, वैसे ही फ्री लाइफ जैसे मैं अनमैरिड था, किसी तरह का रोक टोक नहीं, क्योंकि म्यूजिशियन जो होते हैं उनकी तो लाइफ का टाइम टेबल, सबसे ज्यादा पत्नी को आप समझ सकती हैं कि अगर पति टाइम पे शाम में घर ना आए तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। पर हम चाहे रात के 2 बजे आए चाहे 12 बजे, हाँ इन्फॉर्मेशन पूरा रहता है कि मैं आज इतने बजे निकलूंगा, उतने बजे निकलूंगा। तो उनके वजह से मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। वो उनका सपोर्ट इतना है कि न जाने कितने लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जा रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं लगता कि आपके इतने मेहमान आते हैं, इतने स्टूडेंट आते हैं, सबका खाना बनाना, सबका ख्याल रखना और अपने पूरे टाइम हमको देते हैं उन्होंने। मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा फील होता है कि अगर ऐसी वाइफ ना होती तो ये सुर बिखरा हुआ होता। और सर ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ 뮤직 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? मेरी एक ही बेटी है जी, चाहत हुसैन जी, और मैं ये बड़ा फख्र से कह सकता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड है जी। और मतलब अब वो ये है कि संगीत मेहनत की चीज़ है, चाहे आपको विरासत में मिली हो, जो करेगा उसी का है, ये करनी विद्या है। तो अभी तो वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा वोकल कर रही है और बहुत अच्छा गा रही है। अभी वो BA पार्ट 1 में है और उसने म्यूज़िक ही लिया है, तो म्यूज़िक में ही करेगी वो और बहुत अच्छा कर रही है अभी। तो अभी वो है नहीं, अभी वो गई है। अभी बसंत पंचमी का एक पटना में उसका प्रोग्राम स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो 14 फरवरी को उसका प्रोग्राम है पटना में, तो वो वहाँ गए हुए हैं। ਸਰ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਥੋੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ? देखो, मुझे जो है ना ओरिजिनल बहुत पसंद। मैं जैसे मेरा जो पसंद है खाने पीने का जो भी या पहनने का जो भी हो, वो तो अपना पर्सनल है ही, लेकिन मैं न्यू चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ और वो एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो अभी यहाँ जो सरों दी साग, मक्के दी रोटी, वो तो कमाल दी बात है। तो ये जितनी भी जैसे लस्सी यहाँ का, ये सब तो पहले ही से पसंद था, लेकिन यहाँ आके और भी उसको बढ़िया, तो ये सब बहुत इंजॉय करते हैं। और मिसी रोटी और तरह तरह के पराठे। और सर सब तो ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਟਿਆਲਾ इज फेमस फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत वो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मुझे लैंग्वेज सीखने का भी बहुत शौक है जी। तो मैंने बताया ही कि मैंने बोर्ड पास की है, तो ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ और भी ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, मैं तो ये बहुत ही मान महसूस करता कि पंजाब के लोग का बहुत प्यार मिला है मुझे। और मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं कहीं दूसरे प्रदेश में आया हुआ हूँ। वैसे भी जो लोग हिंदुस्तान और भारत को अपना समझते हैं, पूरा प्रांत ही अपना है। मैं तो भारत की भी बात छोड़ दो, मैं तो यूनिवर्सल में हूँ। हाँ, क्योंकि सारा विश्व अपना है। ये ऊपर वाले ने जो बनाया है, ये पासपोर्ट वीज़ा हटा दो तो सारा जगह क्या बात है। मैं यूरोप में गया, वैसे ही प्यार मिला जी।
और आज यूरोपियन मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी वर्ग, मतलब खांदे पींदे ने सारा कुछ। ਸਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? पहला तो मैं यूरोप ते वर्कशॉप किया, तो कई स्टूडेंट मेरे कर तो रह के ਅੱਛਾ। हाँ महीनों महीनों और इतने रह के वो सीखते ने। एक फ्लोरियाना सीखी मिलान, तो अनफॉर्चुनेटली शी इज डेड, शी इज नो मोर। तो बहुत मुझे दुख होया क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया बजाने लगती थी। इगोर हैं लवन में बोले में, बहुत सारे हैं स्टूडेंट दूसरे कंट्री में भी हैं। तो सरगम तो एक ही है सारा, पर ये लैंग्वेज की ये बात होती है, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में ही बताना पड़ता है उन्हें, पर वो समझ जाते हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और क्लासिकल की तरफ उनका रुझान बहुत है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे अब मतलब जो फॉरेनर हैं वो भी क्लासिकल म्यूजिक कर रहे हैं। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ? ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? देखो जी, ये तो सिंपल बांस होता है, पर ये स्पेशल बांस है जी। हाँ, इसको जो है ये स्पेशल, ये असम की तरफ ज़्यादा होता है, या फिर पीलीभीत है वहाँ होता है। तो ऐसे पोर होते हैं, तो इस तरह के ना छोटे बड़े बहुत होते हैं। इतनी बड़ी भी बांसुरी होती है, उसका फिर पोर मोटा हो जाता है ना। तो ये जो बांसुरी है ये दिखाई दे रहा होगा हमारे श्रोताओं को कि इसमें मेन 7 छेद है, एक फूकने के लिए, एक ये जो है यहाँ से ब्लो करते हैं, और ये 3 उंगली जो है ये 6 उंगली इससे बजती है। तो ये 6 छेद की बांसुरी है, लेकिन इसमें 12 स्वर निकलते हैं। और वैसे ये 1.5 सप्तक होता है, ऑक्टेव कहते हैं, मतलब और सब जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज़्यादा मतलब ऑक्टेव ज़्यादा है, ज़्यादा स्वर निकल सकते हैं, पर हम इस 1.5 ऑक्टेव में ही सारा कुछ बजाते हैं जी। तो इस तरह सारे गामा पाधा निसा बजता है। ये शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर आधा आधा खोलने से बजता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए इसके आधे स्वर से कोमल, तो ये थोड़ा सा जब आप रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको सारा कुछ ये आपके ग्रिप में आ जाता है। सर जब भी मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ Song ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ Song ਹੈ, ਤੁਸੀਂ प्लीज मेरे लिए बजाओगे हो? ये सुनते ही अब तो मुझे बड़ा ही, मतलब मैं क्या कहूँ, एक अनफॉर्चुनेटली ये जो जिन्होंने गाया है उस्ताद राशिद खान साहब, वो अभी कुछ दिन पहले ही हमसे पर्दा कर गए। वो अब हमारे बीच शारीरिक रूप पे तो नहीं है, पर उनके याद, उनके गाने, उनकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी जी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि रूप ये गाना आपको सुनाता हूँ। सुन के ही कैसा लगता है ये, वो यकीन ही नहीं होता कि वो नहीं है, पर वो हमारे बीच में है, हमेशा रहेंगे, हमेशा उनका म्यूजिक हमेशा रहेगा। जी जी।
ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ this is out of the world. Literally it's out of the world. Thank you so much. Thank you so ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖेंगे ਸੁਣਨਗੇ। तो किवें पंजाबी और पंजाबियत नू हर लोग पसंद करते ने वो गल है। देखो जो पंजाबी है वो तो पंजाबी है ही जी, लेकिन देखो मैं बिहार तो आके पटना साहिब तो आके हुण पंजाबी कल्चर अडप्ट किया है तो कोशिश कर रहा किया है कि मैं पंजाबी ते जो भी कर सकदा। तो इत्थे सबसे बड़ी गल गुरुआं दी है जैसे गुरु ग्रंथ साहिब नू बहुत अच्छे नाल मैंने वो रिसर्च किया ते कम किया ते हुण फोक ते बहुत कम किया। ते मैं चाहना कि जदों तक हीर ना हो जाए तदों तक पंजाब दी गल पूरी नहीं हुंदी जी। तो मैं एंड हीर तो करना चाहूँगा डेफिनेटली सर, है ना। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ 뮤직 ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।